میرے بعد بھی آپ کو بہترین نعت اور منقبت کے اشعار اور ایک بہترین خطاب سماعت کرنی ہے۔ میں کچھ دیر کے لیے آپ کے روبرو حاضر آیا ہوں۔ آئیے سب سے پہلے بلا کسی تاخیر کے گنبد خضرا کے مکین، دونوں عالم کے مالک و مختار، شفیع روز شمار، آمینہ کے لال، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا اور داتا، مدثر و مزمل، طہا و یاسین، آمینہ کے لال، جناب احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں درود پاک کی ڈالی محبت کے تھالی میں سجا کر پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ السلام کی شان میں لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا، لیکن آئیے آج میں آپ کو سناتا ہوں ایک ایسا کلام جو قرآن و حدیث کی ترجمانی ہے، اور جس کے لکھنے والا کوئی اور نہیں بلکہ میرے اور آپ کے پیر و مرشد، بہت سارے سنیوں کے پیر و مرشد، ہم سنیوں کی شان حضور اختر رضا خان تاج الشریعہ علیہ رحمہ۔ کہیں نا سبحان اللہ۔ آپ اپنے نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یوں رقم تراز ہے، ذرا سنیں۔ مصطفیٰ ذات یکتاب ہیں، مصطفیٰ ذات یکتاب ہیں۔ کن کا کلام ہے؟ حضور تاج الشریعہ کا کلام ہے۔ بہت غور سے سماعت کریں، ایک ایک لفظ قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھا گیا ہے۔ مصطفیٰ ذات یکتاب ہیں، مصطفیٰ ذات یکتاب ہیں، مصطفیٰ ذات یکتاب ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، آب و گل میں نور کی پہلی کرن۔ یہ شعر جو ہے اس حدیث پاک کی ترجمانی کر رہا ہے، جس میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا، اول ما خلق اللہ نوری، اول ما خلق اللہ نوری کی پروردگار عالم نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، اور اس وقت پیدا فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں، آب و گل میں نور کی پہلی کرن، آب و گل میں نور کی پہلی کرن، جان آدم جان حوا آپ ہیں، جان آدم جان حوا آپ ہیں۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، کلام تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر۔ آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، یہ بھی حدیث پاک کی ترجمانی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ اے محبوب، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، میں زمین کو نہ بناتا، آسمان کو نہ بناتا، سورج اور چاند کو پیدا نہ کرتا، نہ میں شجر و حجر کو پیدا کرتا، نہ آدم کو بھیجتا، نہ موسیٰ کو بھیجتا، نہ عیسیٰ کو بھیجتا، نہ نوح کو بھیجتا۔ غرض کہ اگر کائنات میں نے بنائی ہے، اے محبوب آپ کی خاطر بنائی ہے۔ سرکار تاج الشریعہ کیا فرماتے ہیں، ملاحظہ کریں، آپ کے خاطر بنائے دو جہاں، آپ کے خاطر بنائے دو جہاں، ارے اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتاب ہیں۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی
सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अजमईन सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, दौर हाजिर में अकीदे के ऊपर बहुत कम गुफ्तगू होती है। ज़्यादातर तकरीरों में, जलसों में गुफ्तगू फ़ज़ाइल के ऊपर होते हैं, करामात के ऊपर होते हैं, जिसकी वजह से मुसलमान कभी कभी इस गलत फहमी में मुब्तला हो जाता है कि हम तो सुन्नी हैं, बस इतना काफ़ी है जन्नती होने के लिए। मुसलमान कभी कभी इस गलत फहमी का शिकार हो जाता है, लेकिन हमें अकायद को जानना, अहले सुन्नत वल जमात के नज़रियात को जानना ज़रूरी है। पहले मैं दो अकीदे पर रोशनी डालूंगा, उसके बाद इंशाअल्लाह रहमत आलम कॉन्फ्रेंस के मुतालिक कि हुजूर रहमत बनकर आए, इंशाअल्लाह कुछ कीमती बातें आप तक पहुंचाऊंगा। सबसे पहला मसला अकीदे का कि हमने अभी अपने आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हमारा अकीदा क्या है कि हमारे नबी उम्मत के दुरूद पढ़ने को सुना करते हैं, कहो ना, सुनते हैं कि नहीं? अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा यह है कि जो उम्मती जिस जगह से, जहां से भी अपने नबी पर दुरूद पढ़ता है, मेरे आका अपने उम्मत के दुरूद को सुना करते हैं। सुभान अल्लाह। और कैसे सुनते हैं? हुजूर फरमाते हैं इस तरह सुनते हैं जैसे हुजूर हाजिर और नाजिर हो और उनके सामने उम्मती दुरूद पढ़ रहा हो। अब जरा सुने, आज कुछ लोग ये कहते हैं कि नबी पर दुरूद पढ़ा जाता है इंडिया में बैठकर। क्या नबी मदीने में बैठकर दुरूद को सुन सकते हैं? हालांकि डिस्टेंस 4000 किलोमीटर का है, फासला इतना लंबा है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि इंडिया में दुरूद पढ़ने वाला, पाकिस्तान में दुरूद पढ़ने वाला यहाँ बैठकर दुरूद पढ़ रहा है और उनके नबी मदीने में बैठकर सुन रहे हो? हम अहले सुन्नत वल जमात जो अपने नबी से मोहब्बत करते हैं, नबी से इश्क करते हैं, हम क्या कहेंगे? हाँ, जरूर सुनते हैं। अल्लाह ने हमारे नबी को ये ताकत, ये कुव्वत बख्शी है कि मेरे मुस्तफ़ा मदीना क्या दुनिया के किसी कोने में रहकर भी अपने उम्मत के दुरूद को सुन सकते हैं। आओ सुनो कुरान क्या कहता है। कुरान की रोशनी में मैं आपको बताऊं कि नबी कितना सुनते हैं। कहें पेशगी सुभान अल्लाह। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर का नाम, और ऐसे पैगंबर जिन्होंने पूरी दुनिया में हुकूमत की, और ऐसी हुकूमत कि आपकी हुकूमत सिर्फ इंसानों पर ना थी, बल्कि आपकी हुकूमत जंगल के दरिंदे पर थी, आसमान में उड़ने वाले परिंदे पर थी, जिन्नात पर थी, हत्ता कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको हवा पर भी हुकूमत अता कर दी थी। सुभान अल्लाह। कैसी हुकूमत? अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक मखसूस किस्म की हवा पर हुकूमत अता की थी कि जब पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम को कहीं जाना होता तो आप उस हवा को हुक्म देते, वो हवा आती, आप उसके ऊपर सवार होते और एक जगह से दूसरी जगह आप सफर कर दिए होते। आज का इंसान ट्रेनों में सफर करता है, बसों में सफर करता है। आज का इंसान फ्लाइट में सफर करके सोचता है कि साइंटिस्ट ने बहुत बड़ी इजाद कर दी, बहुत बड़ी चीज बना दी कि हम 1000 किलोमीटर के फासले को घंटों भर में तय कर देते हैं। आज फ्लाइट बनाए गए, रॉकेट बनाए गए जो घंटों भर में कई हजार किलोमीटर की मसाफत तय कर लेते हैं। हवा से परवाज होता है। लेकिन आओ जरा कुदरत इलाही को देखो, इंसान कितना भी आगे बढ़ जाए, अल्लाह की कुदरत कामिला के आगे कोई नहीं बढ़ सकता है। आज दुनिया के लोगों ने एरोप्लेन बनाया है, आज दुनिया के लोगों ने रॉकेट बनाया है, लेकिन आज से 3000 साल पहले परवरदिगार आलम की कुदरत कामिला देखिए। सुलेमान अलैहिस्सलाम है, हवाई जहाज नहीं है, रॉकेट नहीं है, लेकिन अल्लाह ने ऐसी हवा अता कर दी कि अल्लाह का पैगंबर हवा के ऊपर सवार होकर एक जगह से दूसरी जगह जाता हुआ नजर आ रहा है। कोई ये ना सोचे कि हम रॉकेट बनाकर बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए हैं। अल्लाह की कुदरत के आगे कोई पर नहीं मार सकता है। अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक हवा अता की। जब पैगंबर सुलेमान कहीं जाते, उसी हवा पर सवार होते, एक जगह से दूसरी जगह जाते। एक मर्तबा आपको जाना हुआ तो आपने हवा, उसके दोष पर आप सवार हुए, आपके साथ आपके लहब लश्कर, आपकी फौज भी सवार हो गई। आप जाते जाते एक मकाम आया जिसको किताब की जुबान में
وادی نمل کہا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں بولے؟ وادی نمل. میں بالکل قرآن کی تفسیر کے حوالے سے ایک ایک جملہ آپ تک پہنچا رہا ہوں. آلتو پھالتو بات ہم نہیں کرتے ہیں. الحمدللہ درسگاہی آدمی ہوں، جو کہتا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہتا ہوں. اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام ہوا پر سوار، ہوا آپ کو لے کر جا رہی ہے. مقام آتا ہے وادی نمل کا. عربی زبان میں نملتن کا مطلب ہے چیٹی. کیا ہے؟ چوٹی، جس کو ہم لوگ بولتے ہیں اینٹ، چوٹی. ٹھیک ہے، اسی کی وادی یعنی ایسی جگہ جہاں پر صرف چوٹیاں ہی چوٹیاں رہتی ہے. جب پیغمبر سلیمان علیہ السلام ہوا پر سوار ہو کر اس وادی کے قریب ہوئے، ابھی تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر تھے، 5 کلومیٹر دور تھے، تو چیٹیاں آپس میں گفتگو کرنے لگی، میٹنگ کرنے لگی. قرآن کو چیٹیوں کی ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے ان کی باتوں کو نقل کیا. قرآن کہتا ہے قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم. ایک چیٹی نے کہا اے چیٹیوں کی جماعت، اے چیٹیوں کا گروپ، اپنے اپنے بل میں داخل ہو جاؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کی لشکر آئے اور تمہارے اوپر چڑھ جائے اور تم ہلاک و برباد ہو جاؤ، تم مر جاؤ. کون گفتگو کر رہا ہے؟ چیٹی گفتگو کر رہی ہے، آپس میں میٹنگ ہو رہی ہے کہ بل میں داخل ہو جاؤ. پیغمبر سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں، اپنے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں، اپنی فوج کے ساتھ آ رہے ہیں. قربان جاؤ، اللہ کے پیغمبر کی سماعت ذرا دیکھو. 5 کلومیٹر دور ہیں، چیٹی گفتگو کر رہی ہے. سلیمان علیہ السلام نے چیٹیوں کی گفتگو کو سن لیا. کہو سبحان اللہ. سن لیا اور مسکرانے لگے، مسکرانے لگے. پیغمبر سلیمان مسکرانے لگے. قرآن نے ان کی ادا کو کاپی کیا. قرآن کہتا ہے فتبسم ضاحکا من قولها. چیٹیوں کی گفتگو کو سن کر کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام مسکرانے لگے اور اپنے لشکر والوں کو حکم دینے لگے کہ اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے سے چلو، کہیں ہمارے پیروں کے نیچے چیٹیاں نہ آ جائے. اے ادے پور کے زندہ دل مسلمانوں، اب ذرا ذہن کو قریب کرو. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا 5 کلومیٹر دور رہ کر جب پیغمبر سلیمان علیہ السلام چیٹی کی گفتگو کو سن سکتے ہیں. توجہ، اگر چیٹی ہمارے ہاتھ میں ہو ہم اس کی گفتگو نہیں سن سکتے. چیٹی یہاں بیٹھی ہو اس کی آواز کو سن نہیں سکتے ہیں، لیکن 5 کلومیٹر دور سے پیغمبر سلیمان علیہ السلام جب چیٹی کی گفتگو کو سن سکتے ہیں تو مدینے میں رہ کر میرے آقا امت کے درود کو کیوں نہیں سن سکتے ہیں؟ بلا شبہ مدینے میں رہ کر میرے آقا ہم غلاموں کے درود کو ضرور سنتے ہیں. جب اس واقعہ کو بریلی کے امام نے دیکھا تو کہاں خاموش بیٹھنے والا ہے، قلم اٹھایا. کیا لکھا؟ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. یہ میرے مصطفیٰ کا معجزہ ہے. ارے جس سلیمان کو نبوت ملی مصطفیٰ کے صدقے، جس سلیمان کو رسالت ملی مصطفیٰ کے صدقے، جب سلیمان علیہ السلام اتنا سن سکتے ہیں تو میرے مصطفیٰ کتنا سن سکتے ہیں. تو یہاں سے پتا چلا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے کہ امت کہیں بھی رہے، کہیں سے درود پڑے، مصطفیٰ امت کے درود کو سن لیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. دوسرا عقیدہ آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے نبی علیہ السلام زندہ ہے کہ نہیں بھائی؟ جو ان کو مردہ کہیں وہ خود مردہ ہے. آج ایک طبقہ ایسا ہے العیاذ باللہ. اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب صراط مستقیم کے اندر لکھا ہے، تقویت الایمان کے اندر لکھا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، نبی مر کر مٹی میں مل گئے. العیاذ باللہ. وہ کتاب میرے پاس موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. وہابیوں کا امام شاہ اسماعیل دہلوی اپنی کتاب تقویت الایمان کے اندر کیا لکھتا ہے؟ العیاذ باللہ، نبی مر کر مٹی میں مل گئے. لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ نبی زندہ ہے اور اللہ نے ان کو ایسی زندگی عطا کی ہے جو حقیقی زندگی سے بڑھ کر زندگی ہوا کرتی ہے. اللہ نے قبر کے اندر ان کو ایسی زندگی عطا کی ہے. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نبی زندہ کیسے ہیں، نبی زندہ کیسے ہیں. ذرا پروف سنیں، دلیل سنیں.
बहुत तवज्जो से सुने, तफसीर कुरान के हवाले से मैं एक बात बताने लगा हूँ। मेरे अजीजों गौर करो, हवा को छोड़ो, बारिश को छोड़ो, बादल को छोड़ो, अरे रिश्ता मुस्तफा से जोड़ो, फिर देखो कितनी बरकतें मिलती हैं। तवज्जो, तफसीर के हवाले से आपको बात बताने जा रहा हूँ। सामरी एक शख्स था, सामरी जो कौमे बने इसराइल में मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में सामरी एक शख्स था जिसकी परवरिश जिब्रील अमीन ने की थी। किसने की थी? जिब्रील अमीन ने। तफसीर बड़ी लंबी है, मैं मुकम्मल तफसीर पर नहीं जाना चाहता हूँ। वो शख्स, उसकी माँ ने उसको पहाड़ के खो में फेंक दिया था। जिब्रील अमीन अपनी उंगली उसको चुसाया करते थे, उस उंगली से दूध निकला करता था और पी पी कर वो बड़ा हुआ। जिब्रील अमीन को अच्छी तरह वो जानता था, सामरी अच्छी तरह जानता था। इसने क्या किया कि हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम जिस घोड़े पर सवार होकर जाते थे, उस घोड़े के टाप के नीचे जो धूल होती थी, उसकी खासियत ये थी कि जहां से जिब्राइल अमीन गुजरा करते थे वहां की जमीन सरसब्ज़ और शादाब हो जाती थी। अगर वो जमीन चटियल होती थी वहां पर घास उग जाती थी। इतनी तासीर जिब्रील अमीन में, और आप जिस घोड़े पर सवार होते उस घोड़े के टाप में थी। सुभान अल्लाह। सामरी को यह बात मालूम थी कि जिब्रील अमीन के घोड़े और उसके टाप के धूल में इतनी तासीर है। उसने क्या किया, थोड़ी सी धूल उठा करके अपने पास महफूज कर लिया। कुछ दिनों के बाद पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह की जानिब से हुक्म आया कि ए मूसा, तुम तूर पर चले आओ, हम तुमको अपनी आसमानी किताब देंगे। कौन सी किताब? तौरात नामी आसमानी किताब मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। अल्लाह का हुक्म पा करके पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर पर चले जाते हैं। अल्लाह के साथ हम कलाम होते हैं, आप पर तौरात नामी आसमानी किताब नाजिल होती है। उसी दरमियान सामरी नीचे मौजूद होता है और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले लोगों को बहकाना शुरू करता है। कहता है कि तुम्हारे पास जो भी सोने चांदी के जेवरात हैं सब मेरे पास जमा कर दो। 12,000 लोगों को छोड़ करके जितने लोग थे सबों ने अपने सोने चांदी को सामरी के पास जमा कर दिया। सामरी ने तमाम सोने चांदी को पिघलाया। पिघलाने के बाद एक बछड़ा बनाया, एक गाय का बच्चा बनाया। जब बच्चा बनकर तैयार हो गया तो सामरी ने क्या किया, उस धूल को, जो जिब्रील अमीन के घोड़े के टाप के नीचे की धूल थी, उस धूल को लेकर के उस बेजान बछड़े के मुंह में डाल दिया। अल्लाह अकबर। मुंह में डालना था कि सोने का बना हुआ बछड़ा जो अभी तक बेजान था उस धूल के पड़ते ही बोलना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर। बोलना शुरू कर दिया। जब बछड़े को बोलता हुआ देखा तो बनी इसराइल के बहुत सारे लोग उसको माबूद समझ बैठे, उसको खालिक समझ बैठे और उसकी इबादत करनी शुरू कर दी। आज इसी बिना पर एक तबका, एक कौम हमारे दरमियान ऐसा है जो बुतों की, गायों की पूजा किया करते हैं। उसी जमाने से चला आ रहा है ये। तो कुछ लोग उस गाय की परस्तिश करनी शुरू कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम जब कोह तूर से वापस आए, ये मामला देखा, आपने रब की बारगाह में दुआए हलाकत की। फौरन 1 घंटे के अंदर तकरीबन 70,000 बनी इसराइल जिन्होंने बछड़े की पूजा की थी, अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह की इबादत की थी, सब के सब हलाक व बर्बाद हो गए। अब यहाँ से मैं आपको एक दलील देना चाहता हूँ, एक बात बताना चाहता हूँ। जरा सोचिए तो सही, जिब्रील अमीन के घोड़े की टाप की धूल में इतनी तासीर है कि अगर बेजान सोने के बने हुए घोड़े के मुंह में डाल दिया जाए तो उसको जिंदगी मिल जाए। तो जो जिब्रील मुस्तफा के दरबार में 24,000 मर्तबा हाजिरी दे रहा हो, उस नबी के कश्फ करामत का आलम क्या होगा। जब जिब्रील के घोड़े की टाप के धूल से मुर्दा जिंदा हो सकता है तो मोहम्मद अरबी जिंदा क्यों नहीं होंगे। बिलाशुबा हमारे नबी कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। बरेली का इमाम कहता है तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले। आज हमारे और आपके पास वो आंख ही नहीं है कि हम अपने नबी का जलवा देख सकें। देखने वाले देखते भी हैं और महसूस भी होते हैं। अल्लाह पाक हमारे ईमान अकीदे की हिफाजत फरमाए। पता चला हमारे नबी दूर से हमारी बातों को सुनते भी हैं, हमारे नबी हाजिर भी हैं, हमारे नबी नाजिर भी हैं और हमारे नबी जिंदा भी हैं। कहो सुभान अल्लाह।
درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، آپ کا یہ اجلاس بنام رحمت عالم کانفرنس، میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، بے شک ہمارے آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے کہ نہیں؟ سارے عالم کے لیے، ناٹ اونلی فار مسلم بینگ۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کے لیے میرے آقا رحمت بن کر آئے تھے، نہیں، میرے آقا مسلمانوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، بچوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، بوڑھوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ اب ذرا سنو میرے آقا رحمت کیسے ہوئی، میرے آقا رحمت عالم بن کر کیوں تشریف لائے اور کیسے رحمت عالم بن گئے؟ ذرا میرے آقا کی آمد سے پہلے کے زمانے کا جائزہ لیجئے۔ المختصر بتاؤں گا، بات آپ کو معلوم ہی ہوگی۔ میرے آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے کا زمانہ ایسا زمانہ گزرا ہے کہ جس زمانے میں بچیوں کو منحوس سمجھ کر کے زمین میں زندہ گاڑ دیا جاتا ہے۔ کیسا زمانہ تھا ذرا سوچیں۔ آج آپ بیٹیوں کو سینے سے لگاتے ہو نا، آج باپ خواہش کرتا اے اللہ 2 بیٹا دیا 1 بیٹی بھی دے دے، اے اللہ 1 بیٹا دیا 1 بیٹی بھی دے دے۔ آج کا مسلمان، آج نبی کا امتی بیٹی کی خواہش اور تمنا کرتا ہے، لیکن ایک زمانہ کیسا تھا ذرا سوچیں۔ لوگ بیٹیوں کو منحوس سمجھتے تھے اور منحوس سمجھ کر زمین میں زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ مائیں جن کے شوہر کا انتقال ہو جاتا، بیٹا خود اپنی ماں کو لے جا کر بازار میں بیچ دیا کرتا تھا، دوسرے کے گھر میں نوکری پر رکھ دیا کرتا تھا، اور بیوی کو نوکرانی سمجھا جاتا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ لڑتے تھے، ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے اور خون نکال کر کے انسان کی کھوپڑی میں ڈال کر پیا کرتے تھے۔ شراب اس قدر عام ہو گئی تھی کہ جس قدر آج ہم لوگ پانی پیتے ہیں اس طرح لوگ شراب پیا کرتے تھے۔ غرض کی زندگی کا نظام درہم برہم ہو گیا تھا۔ بیٹیاں اپنے قبروں کے اندر چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی اے میرے رب ذوالجلال، اے میرے پروردگار، آخر بیٹی کب تک زمین میں دفن کی جائے گی؟ آخر بیٹیوں پر کب تک ظلم ہوتا رہے گا؟ اے میرے مالک بھیج دے کسی ایسے کو جو بیٹیوں کی جان کو بچا لے۔ مائیں الگ رو رہی تھی، مائیں الگ سسک رہی تھی، اے میرے پروردگار کب تک ماؤں کو بازاروں میں بیچا جائے گا؟ کب تک ماؤں کو منڈیوں میں بیچا جائے گا؟ کسی کو بھیج دے جو ماؤں کی عزت کو بچا دے۔ بیویاں الگ پکار کر کہہ رہی تھی اے میرے پروردگار کب تک بیویوں پر ظلم کیا جائے گا؟ کسی ایسے کو بھیج دے جو بیوی کو عزت دلا دے، بیوی کو شرافت دلا دے۔ جب ماں بہو بیٹیاں رونے لگی، چیخنے لگی، پکارنے لگی، پروردگار عالم کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ 12 ربیع النور کو سوموار کے دن صبح صادق کے وقت پروردگار عالم نے سارے عالم کے لیے رحمت عالم بنا کر میرے اور آپ کے نبی کو مبعوث فرما دیا۔ جب میرے مصطفیٰ آئے تو میرے مصطفیٰ فرمانے لگے آئے بیٹیوں اب ڈرنے کی بات نہیں ہے، اے میری ماں اب رونے کی بات نہیں ہے۔ مصطفیٰ رحمت عالم بن کر آیا ہے۔ اب مصطفیٰ پیغام کیا دے رہے ہیں ذرا سنو مسلمانوں۔ میرے نبی فرماتے ہیں اے لوگوں بیٹیاں زمین میں درگور کرنے کی چیز نہیں ہے، بیٹی منحوس نہیں ہے۔ سنو جس گھر میں ایک بیٹی ہوگی روزانہ اس گھر میں رب کی 12 رحمتیں نازل ہو جایا کرے گی۔ آج بھی لوگ بیٹیوں کو منحوس سمجھتے ہیں، کیا عجیب کھوپڑی کے لوگ ہیں جی۔ جس گھر میں 2-3 بیٹیاں ہو جاتی ہیں تو ساس کا منہ الگ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، نند کا منہ الگ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، لگتا ہے سارا قصور بیوی کا ہی ہے۔ ارے بیٹا یا بیٹی ہونا انسان کے اختیار کی بات ہے، انسان کے اختیار کی بات تو نہیں ہے۔ یہ تو رب کے دست قدرت میں ہے کہ رب جس کو چاہے بیٹا دے یا جس کو چاہے بیٹی دے۔ پتہ نہیں لوگوں کا دماغ اور کھوپڑی پرانے لوگ ابھی بھی کہاں پڑے ہوئے ہیں، اسی چکر میں ہوتے ہیں، اسی چکر میں کہ بیٹا کیوں نہیں ہو رہا صرف بیٹی کیوں ہو رہی ہے۔ ان نادانوں کو ذرا سناؤ تو صحیح کہ میرے مصطفیٰ بیٹی کے باپ بھی تھے، میرے مصطفیٰ بیٹی کے بارے میں کیا فرمان سناتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر بیٹا رب کی نعمت کا نام ہے تو بیٹی رب کی رحمت کا نام ہے۔ میرے مصطفیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں
जिस शख्स के पास 4 बेटियां हों उनकी अच्छी तालीम दे, उनकी अच्छी तरबियत करे, अच्छी जगह शादी दिला दे, बरोज़े क़यामत मैं और उस बेटी का बाप जन्नत में इस तरह दाखिल होंगे, उसका हाथ मेरे हाथ में होगा, मैं उसे अपने साथ लेकर जन्नत में दाखिल हो जाया करूंगा। आज लोग कहते हैं बेटी क्यों होती है? अरे जब बाप बूढ़ा बीमार होता है तो बेटा बॉम्बे से फोन क्या करता है कि डॉक्टर दिखा दो, डॉक्टर दिखा दो, काम में बिजी हो, आने का वक्त नहीं है। लेकिन बेटी अगर 10-15 किलोमीटर दूर भी होगी ना, तड़प कर पहले दौड़ कर आएगी, देखे मेरा बाप क्या बीमारी में पड़ गया है। आके सबसे पहले बेटी बाप के कंधे पर हाथ रखती है, पूछते अब्बा तबीयत कैसी है। माँ बीमार होती है, बेटा बाद में देखता है, बाद में पूछता है, बेटी पहले ख्याल करती है। मेरे अजीज, बेटियां मनहूस नहीं होती है, रब की सरापा रहमत हुआ करती है। जिस घर में होती है रहमत लेकर आती है, बरकत लेकर आती है, जहां जाती है बरकत को लुटाते हुए चली जाया करती है। नबी आए तो बेटियों को इतना ऊंचा मकाम मिल गया। अब जरा बताओ कि मेरे नबी बेटी के लिए रहमत हुए कि नहीं? बताओ हुए ना? अब जरा सुनो, फिर मेरे मुस्तफा का इरशाद फरमाता है, ऐ लोगों सुनो, अब माओ को परेशान होने की जरूरत नहीं है, परवरदिगार आलम ने मुझे रहमत आलम बनाकर भेजा है। ए लोगों सुनो, माँ को मंडी में मत बेचो, माँ को बाजारों में मत बेचो, माँ बेचने की चीज नहीं है, माँ की बेअदबी मत करो, माँ की बेहुरमती मत करो। सुनो माँ का मकाम क्या है, सुनो माँ का मर्तबा क्या है। मेरे मुस्तफा यहाँ तक इरशाद फरमाते हैं, जन्नत को अल्लाह तबारक व तआला ने 7 आसमान के ऊपर रखा था, लेकिन मेरे मुस्तफा ने जन्नत को खींचकर माँ के कदमों के नीचे डाल दिया। अब किसी को जन्नत चाहिए, कहीं और जाना नहीं है, माँ के कदमों में बैठ जाओ, तुम्हें जन्नत की भीनी भीनी खुशबू मिलती हुई नजर आएगी। अब वक्त का कोई भी हो, वक्त का गौस हो, वक्त का कुतुब हो, वक्त का बड़ा से बड़ा मुफ्ती हो, बड़ा से बड़ा आलिम हो, बड़ा से बड़ा डॉक्टर हो, बड़ा से बड़ा साइंटिस्ट हो, बड़ा से बड़ा इंजीनियर हो, कोई भी हो, उसके लिए जन्नत तो माँ के कदमों के नीचे रख दी गई है। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, अल जन्नतो तहत अक़दामिल उम्महात, ए लोगों जन्नत कहीं और नहीं है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत को रख दिया गया है। अब जरा मुझे बताओ, जिस मोहम्मद अरबी ने जन्नत को माँ के कदमों के नीचे रख दिया, क्या उस माँ के लिए मेरे मुस्तफा रहमत नहीं है? बिलाशुबह रहमत है। अब जरा सुनो, लोगों में कल्चर क्या था, समाज में क्या दस्तूर था, शराब नोशी किस तरह आम थी, कत्ल गारत गरी किस तरह आम थी। मेरे मुस्तफा आए तो लोगों को कत्ल से रोका, जीने का सलीका बताया, जीने का तरीका बताया। बरस के मेरे मुस्तफा सारे आलम के लिए रहमत बनकर आए। लोग तारीकियों में जिंदगी गुजार रहे थे, लोग जिहालत में जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन मेरे मुस्तफा आए, पूरी दुनिया को जिहालत के तारीकी से निकाल करके इल्म और नूर के हिदायत के रास्ते पर गामजन कर दिया। वो हर आलम के रहमत है, किसी आलम में रह जाते, वो हर आलम के रहमत है, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि आलम पसंद आया, ये उनकी मेहरबानी है कि आलम पसंद आया। सुभान अल्लाह, मेरे आका पूरे आलम के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर तशरीफ लाए। अगर मेरे मुस्तफा तशरीफ ना लाते तो क्या होता, जरा सोचिए। आज हम भी बेटियों के मकाम को ना समझते, आज हम भी बेटियों को कहीं नदी के किनारे, कहीं रेत में, कहीं जंगल में दफन करते हुए नजर आते हैं। अगर मुस्तफा ना आते तो आज हम भी माओ पर जुल्म करते हुए नजर आते, माओ को बाजारों की जीनत बनाती होते, अल-अयाज़ु बिल्लाह। अगर मुस्तफा ना आते तो बीवी का मकाम और मर्तबा, बहन का मकाम और मर्तबा हमें समझ में नहीं आता। पड़ोसियों के साथ क्या सलूक करना चाहिए, रिश्तेदारों के साथ क्या बर्ताव करना चाहिए, हमें कुछ भी समझ में नहीं आता। मुस्तफ़ा आए तो सारे आलम के लिए रहमत बनकर आए, हमें दीन सिखाया, हमें शरीयत सिखाई, हमें जीने का सलीका सिखाया। इसी बिना पर कहा गया, मेरे मुस्तफ़ा सारे आलम के लिए रहमत आलम बनकर जलवगर हो गए हैं। अब जरा सुने, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के फरमाने आलिशान बेशुमार हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि नबी की जिंदगी को अपने लिए नमूने अमल बनाया जाए। आज अफसोस इसी बात का तो है, हम नबी का मिलाद तो मनाते हैं,
नबी की जिंदगी, आपकी बायोग्राफी सुनते तो हैं, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम को फॉलो नहीं करते हैं। अगर आज भी सही मानों में मुस्तफ़ा करीम की जिंदगी को फॉलो कर लिया जाए तो मुसलमान जिस पसमानदगी का शिकार है, आए दिन जिस तरह परेशान हो रहा है, जिस तरह ठोकरें खा रहा है, कोई मुसलमान ठोकर नहीं खाता। क्योंकि कुरान ने कहा है मुसलमान बेहतरीन कौन है, उस वक्त बेहतरीन कौन है जब अपने नबी से मोहब्बत करेगा। क्योंकि जब मुसलमान नबी से मोहब्बत करेगा, अल्लाह से मोहब्बत करेगा, तभी मुसलमान को कामयाबी और कामरानी से हमकिनार किया जाएगा। आज बहुत बड़ा ट्रेजिक मैटर मुसलमान कम्युनिटी के अंदर, मुसलमान समाज के अंदर शराब नोशी और जुआ खेलने की है। बड़े अफसोस की बात है, हम मुसलमान हैं, हम नबी का कलमा पढ़ते हैं, हम सर पर टोपी लगाकर बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखकर कुर्ता पजामा पहनकर जुलूस मोहम्मदी में निकलते हैं, अपने आप को दिखाते हैं कि आज हमसे बड़ा मुसलमान कोई नहीं है कि नहीं। लेकिन आज मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका, स्पेशली हमारे नौजवान भाई, शराब के अड्डों की जीनत बने हुए हैं। मुसलमान इसका नाम नहीं है कि सिर्फ मुसलमान घर में पैदा हो गया, मुसलमान हो गया, मुसलमान जैसा नाम हो गया, मुसलमान हो गया, हफ्ते में 2-4 किलो गोश्त खा लिया, मुसलमान हो गया। नहीं मेरे अजीज, मुसलमान वो नहीं है जो मुसलमान घराने में पैदा हुआ है, मुसलमान वो नहीं है जो मुसलमान जैसा लिबास पहनता हो। सच्चा पक्का मुसलमान वो होगा जिसके आगे फरमान मुस्तफा होगा, जिसने अपनी गर्दन को मुस्तफा के फरमान के आगे झुका दिया होगा। सही मानों में सच्चा पक्का मुसलमान ही करार दिया जाएगा। अब जरा सुनो, जो शराब के आदी हो चुके, सुनो तुम क्या कर रहे हो। शराब ऐसी बदतरीन चीज है जिसके बारे में हदीस पाक में आया है, तमाम बुराइयों की जड़, उम्मुल खबाइस, तमाम बुराइयों की माँ जिसको कहा गया है, उसी को शराब कहा जाता है। आज का नौजवान शराब के अड्डों में ऐसे जाता है जैसे लगता है कोल्ड ड्रिंक पीने जा रहा है। इस कदर आदी हो चुका है कि लाख उसको समझाया जाता है, उसको कहा जाता है कि बाबू बेटा भाई शराब छोड़ दीजिए, उससे ये काम नहीं हो पाता है। नौजवान लड़के शराब के नशे के ऐसे आदी हो जाते हैं जिस जवानी में उसके खून में जोश ईमानी होना चाहिए, जिस जवानी में उसके अंदर गैरत ईमानी होना चाहिए, जिस जवानी में उसे तंदुरुस्त और फिट होना चाहिए, शराब और बुरी लत लगने की वजह से, बुरे नशे की वजह से उसकी हालत जैसे पखाटी की तरह हो जाती है। और आखिरकार नतीजा क्या होता है, तड़प कर बिलक कर वो हॉस्पिटल में अपनी जान दे दिया करता है। आज का नौजवान क्या समझता है कि हम पी तो रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। मेरे भाई, आपको दुनियादारी नहीं मालूम है, अभी आप जवान हो, आपके खून में ताकत है, इसलिए शराब का रिएक्शन आपको पता नहीं चल रहा है। लेकिन इंतजार करो, जैसे आपकी उम्र 40 साल होगी ना, आपके खून की गर्दिश कम होगी, ब्लड सर्कुलेशन कम होगा, फिर आप देखना तमाशा, फिर आप देखोगे तमाशा। उसके बाद ये शराब का नशा करने वाले देखेंगे आपका क्या हाल होता है। फिर उसके बाद छोटी छोटी बीमारी आपको इस तरीके से घेर लेगी कि आप मौत तक उस बीमारी के चंगुल से बाहर नहीं आ सकते हो। कैसा मुसलमान है जी, नबी का कलमा पढ़ता है और शराब भी पीता है। मुसलमान घराने में पैदा हुआ, मस्जिद में जाता है, शराब भी पीता है। नमाज के लिए अल्लाह अकबर कहता हुआ हाथों को बांधता है, शराब भी पीता है। ये कैसा मुसलमान है? क्या तुमने अपने नबी का फरमान नहीं सुना है? सुनो मेरे मुस्तफा ने क्या फरमाया। मेरे नबी आका करीम रहमत आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जो लोग शराब पिएंगे और अपने सरों के ऊपर गाना बाजा करेंगे और नाचने वालियों को नचाएंगे, परवरदिगार आलम उनको जमीन में धंसा देगा और बरोज़े क़यामत उनको बंदर और सुअर बनाकर उठाएगा। अल-अयाज़ु बिल्लाह। ये इंसानी शक्ल सूरत अच्छी नहीं लग रही है। आज अगर हमारे थोड़ा सा एक्सीडेंट हो जाए, चेहरे पर खरोच आ जाए, तो हम उस दाग को मिटाने के लिए तरह तरह की कोशिशें करते हैं, सर्जरी करवाते हैं, मरहम लगवाते हैं कि हमारा फेस अच्छा दिखे, हमारा चेहरा अच्छा दिखे। क्या कोई मुसलमान इस बात को गवारा कर सकता है? उसे बंदर बना दिया जाए, उसे सुअर बना दिया जाए। सुनो, शराबियों का नतीजा क्या होगा? जो लोग शराब के आदी हैं, शराब का नशा छोड़ नहीं पा रहे हैं, बरोज़े क़यामत उनका चेहरा इंसानी शक्ल सूरत में नहीं होगा,
बल्कि परवरदिगार आलम उनको बंदर और सुअर बनाकर बरोज़ क़यामत उठाएगा। कितनी बड़ी वईद की बात है। इन बातों को सुन सुनकर भी अगर कोई इस नशे से तौबा नहीं करता है तो उससे बड़ा बदबख्त इंसान दुनिया में और कोई नहीं हो सकता है। एक और हदीस पाक सुनो, मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स दुनिया में जितना ज्यादा शराब पिएगा, सुनो अल्लाह क्या फरमाता है, मुस्तफ़ा की जुबानी परवरदिगार आलम फरमाता है, जो शख्स दुनिया में जितना ज्यादा शराब पिएगा, बरोज़े क़यामत में उसको उतना ही ज्यादा पीप पिलाऊंगा, उतना ही ज्यादा पीप पिलाऊंगा। और दूसरे मकाम पर मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, और जो शख्स जितना ज्यादा शराब से दूर रहेगा, बरोज़े क़यामत में उसको उतना ज्यादा हौज़े कौसर से पिला दिया करूंगा। शराब पियोगे, बरोज़े क़यामत परवरदिगार आलम तुम्हें पीप पिलाएगा, और शराब से दूर रहोगे तो हौज़े कौसर पीते हुए नजर आओगे। पीप अगर बदन से निकल जाए, हम देखना गवारा नहीं करते, सूंघना गवारा नहीं करते। जरा सोचो तो सही, क्या हाल होगा उन लोगों का जिनको जाम भर भर के, बोतल भर भर के बरोज़े क़यामत पीप पिलाया जाएगा। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, अपने हाथ से अपनी जवानी को बर्बाद न करो। शराब के नशे से आज तौबा कर लो। तुम रहमत आलम कॉन्फ्रेंस मना रहे हो, आज रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में आने वालों एक पैगाम लेकर जाओ। मेरे मुस्तफ़ा जब मदीना शरीफ में तशरीफ लाए, आपने देखा लोग शराब पी रहे थे, लोग शराब के नशे के आदी हो चुके थे। जब मेरे मुस्तफ़ा ने फरमान जारी किया, अल्लाह का हुक्म हुआ, ऐ मुस्तफ़ा, आपकी शरीयत में शराब को हराम किया गया है, जुआ को हराम किया गया है, शराब के साथ साथ मुर्दार के गोश्त को हराम किया गया है। जब मेरे मुस्तफ़ा ने मदीने में ऐलान जारी कर दिया, कसम खुदा की सहाबाए किराम के जानिसारी देखो, तमाम सहाबा अपने अपने घरों में गए। इसके घर में मदीना शरीफ में इस बात का ऐलान जारी किया कि मेरे सहाबा सुनो, परवरदिगार आलम का हुक्म आया है कि अल्लाह ने शराब को, जुआ को और मुर्दार के गोश्त को हराम कर दिया। सहाबाए किराम का इश्क देखो, मोहब्बत देखो। आज हम भी अपने नबी से इश्क करते हैं, हम भी मोहब्बत करते हैं, लेकिन जमीन और आसमान का फर्क है। जब सहाबा ने मुस्तफ़ा का फरमान आलिशान सुना, अपने घर को गए, जाने के बाद जिसके घर में जितनी शराब रखी थी, सारी शराबों को नालियों में बहा दिया। सिर्फ बहाया नहीं, जिसके मटके में शराब रखा गया था, सारी मटकों को तोड़ करके नीस्तो नाबूद कर दिया। ये मेरे मुस्तफ़ा के फरमान का असर था कि सहाबा ने फौरन शराब से तौबा भी की और तमाम शराब को नालियों में बहा दिया। अब ऐ उदयपुर के नौजवानों, ऐ जिंदा दिल मुसलमानों, वो भी नबी के आशिक थे, वो भी नबी के दीवाने थे। उन्होंने मुस्तफ़ा का फरमान सुना तो शराब से तौबा कर लिया। आज मुस्तफ़ा करीम हमारे दरमियान बज़ाहिर तो नहीं है, लेकिन मुस्तफ़ा के ये वारिसीन हैं, ये उलमा हैं, ये आलिम आज आपको पैगाम देकर जा रहा है, अल्लाह के वास्ते आज के बाद शराब पर हाथ ना लगाना, आज के बाद शराब की भट्टियों की जीनत ना बनना मेरे भाई, आज के बाद शराब पर पैसा सर्फ ना करना। अरे कसम खुदा की, अगर आज आप इस महफिल से तौबा करके उठोगे तो कसम खुदा की बरोज़े क़यामत मुस्तफ़ा करीम तुमको अपने हाथ से भर भर कर जामे कौसर पिलाते हुए नजर आएंगे। करेंगे ना भाई? एक जलसे से अगर आप ये पैगाम भी नहीं लेकर गए तो क्या लेकर गए? सिर्फ नात और तकरीर, वाह वाह सुभान अल्लाह मकसद नहीं है। पैगाम लेकर जाओ, पैगाम लेकर जाओ। रहमत आलम कॉन्फ्रेंस का पैगाम, हमें शराब से तौबा करनी है, हमें शराब से दूर रहना है। मेरे भाई, शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। अब जरा इसके नुकसानात सुनो, इसके साइड इफेक्ट सुनो, रिएक्शन सुनो। शराब की वजह से शौहर बीवी में सबसे ज्यादा झगड़ा होता है। शराब की वजह से आपकी आमदनी पर असर पड़ता है, शराब की वजह से आपकी सेहत पर असर पड़ता है, शराब की वजह से आप नमाज से दूर होते हुए नजर आते हैं, शराब की वजह से आप माँ से झगड़ा करते हुए नजर आते हो, शराब की वजह से आप काम काज से सुस्ती करते हुए नजर आते हो। एक शराब, एक अनार और 100 बीमार।
एक शराब है और 10 तरह की 100 तरह की बीमारियां इसके साथ लगी हुई है। ये अक्लमंद मुसलमान, आप जरा अपने अकल पर रश्क करो। अल्लाह ने आपको अकल सलीम दिया, गौर करो आप क्या पी रहे हो। क्या ये चीज पीने की होती है? शराब की हुर्मत तो इतनी ज्यादा है कि मेरे मुस्तफा ने फरमाया शराब पीना भी हराम, शराब पिलाना भी हराम। जो शराब जिस बर्तन पर लाकर पिलाएगा वो भी हराम, शराब को ट्रांसपोर्ट करना भी हराम। शराब से रिलेटेड जितने बिजनेस हैं सबको नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हराम करार दिया है। जरा अंदाजा तो लगाओ, जब शराब से रिलेटेड हर चीज हराम है तो एक मुसलमान कैसे शराब पी सकता है? मेरे भाई, आपकी शान ये नहीं है आप शराब पियो। अरे आपका मकाम तो ये है कि आप मदीना शरीफ जाओ, मक्का शरीफ जाओ, आबे ज़मज़म लाओ, आप आबे ज़मज़म पिया करो। आपका मकाम तो ये है कि आप दुनिया में रहो, इस तरीके से रहो, एक मिसाली जिंदगी कायम करो। आप जब नबी के बारगाह में हाजिर होगे तो आपको मुस्तफा करीम अपने हाथ से जामे कौसर पिलाते हुए नजर आएंगे। पैगाम, दूसरा पैगाम जुआ खेलना। आज हमारे मुसलमान कम्युनिटी में इसका रिवाज इतना ज्यादा हो गया है, लोग नाम बदल कर जुआ खेलते हैं। लॉटरी, डियर 1 करोड़ बहुत चलता है, पेपर में, सोशल मीडिया में, जहां जाइए देखिए एक पोस्टर लगा रहे थे, डियर 1 करोड़। 1 करोड़ रुपए लॉटरी में जीतिए। जगह जगह लॉटरी के स्टॉल, जिस चौराहे पर, जिस नुक्कड़ पर पहुंच जाए, स्टेशन पर जाइए, 10 दुकानें आपको लॉटरी की मिलेंगी। जुआ हमारी शरअ में नाजायज हराम है। आज कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जुआ थोड़ी है, ये तो लॉटरी है, ये तो हम ताश में पैसा जीत रहे हैं, ये तो हम IPL में पैसा लगाकर जीत रहे हैं, ये तो हम मोबाइल में गेमिंग करके पैसा जीत रहे हैं, ये सब जुआ कैसे हो सकता है? मेरे अजीज, जुआ कहते किसको हैं? जुआ की डेफिनेशन क्या है, इसको पहले समझने की जरूरत है। ऐसी जगह कि जहां पर पैसा लगाने के बाद हारना और जीतना दोनों तरह का पहलू शामिल होता है। आप जीत भी सकते हो, आप हार भी सकते हो। ऐसी जगह पैसा लगाना हमारी शरअ में नाजायज और हराम है। आप कोई भी मैच देख लो, कोई भी मोबाइल गेमिंग देख लो, लॉटरी देख लो, जो भी चीज देख लो, पैसा लगाने के बाद श्योर नहीं होता कि आपको पैसा रिटर्न मिलेगा, आप जीतेंगे, बल्कि जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। इसी को हमारी शरअ में जुआ कहा जाता है। कुरान पाक में, हदीस पाक में साफ साफ जुआ की हुर्मत नाज़िल हुई है। यसअलूनका अनिल खम्र वल मैसिर, लोग आपसे, ए महबूब, लोग आपसे शराब और जुआ के बारे में पूछते हैं। कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, आप फरमा दीजिए वो दोनों तो गुनाह कबीरा है, दोनों गुनाह कबीरा है। जुआ खेलना एक मुसलमानों का शेवा नहीं है मेरे अजीज। अब जरा हदीस मुस्तफ़ा सुनो, मेरे नबी ने क्या इरशाद फरमाया। जुआ जो लोग खेलते हैं आज ही सच्ची पक्की तौबा कर लो मेरे भाई। मेरे नबी का फरमान सुनो, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया जो शख्स जुआ खेलता है उसके बाद नमाज के लिए आता है, जो शख्स, तवज्जो मेरी तरफ हो, जो शख्स जुआ खेलता है उसके बाद नमाज के लिए आता है, गोया कि उसका हाल ऐसा है कि वो सुअर के गोश्त और खून से वजू बना करके नमाज पढ़ने के लिए आया है। कोई शख्स ये गवारा कर सकता है कि सुअर के खून से खेले, सुअर के गोश्त से खेले? एक मुसलमान की शान ऐसी नहीं हो सकती है मेरे अजीज। नाम बदल देने से काम नहीं बदल जाता है, जुआ जुआ होता है। लॉटरी मत खेलो। आज लॉटरी के चक्कर में हमारा नौजवान बर्बाद हो गया है। सुबह सुबह उठकर जिसको कुरान पढ़ना चाहिए, जिसको दुरूद पढ़ना चाहिए, जिसको अल्लाह रसूल का नाम लेना चाहिए, वो जाकर लॉटरी के दुकान में अपनी किस्मत आजमाता है कि देखे आज मेरी किस्मत का क्या फैसला होता है। तुम्हें लॉटरी पर भरोसा तो है लेकिन अल्लाह की जात पर भरोसा नहीं है। जिस परवरदिगार आलम ने फरमाया कि ये कुरान बरकत वाली किताब है, ये कुरान रहमत वाली किताब है, जिस घर में कुरान की तिलावत होगी वहां पर रहमत नाजिल होगी, बरकत नाजिल होगी। तुम कुरान को छोड़कर लॉटरी के पर भरोसा कर रहे हो, तुम अल्लाह को छोड़कर लॉटरी के दुकान पर भरोसा कर रहे हो, बर्बाद हो जाओगे मेरे अजीज, मेरे भाई, तबाह हो जाओगे। आज लॉटरी का चक्कर में कितने नौजवान सोना बेच देता है, जमीन बेच देता है, और जब हारता चला जाता है बीवी को गिरवी रख कर भी जुआ और सट्टाबाजी करता है। मेरे अजीज, हकीकत यही है, ये अच्छी बातें नहीं है, ये मुसलमानों का काम नहीं है।
शायर इंटरनेशनल जनाब गुलाम नूर मुजस्सम साहब रौनक स्टेज हो चुके हैं। आप हजरत के नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें। बहुत बेहतरीन आवाज़ और अंदाज के मालिक हैं। बहुत दिनों से हजरत से मेरा राब्ता है। अब मेरे बाद जश्न हजरत को आप समाप्त करेंगे। बस थोड़ी देर में मैं अपने गुफ्तगू को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अजमईन। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात मोहतरम, मैं ये अर्ज कर रहा था, आज आप रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में आए हुए हैं, दो अहम पैगाम मैंने आपको दिया। एक शराब से तौबा करना है और दूसरा जुए से तौबा करना है। दोनों ही चीज एक मुसलमान को तबाह और बर्बाद कर देती है। दोनों ही चीज मुसलमान को तबाही के दहाने पर खड़ा कर देती है। मेरे अजीज, अपने ईमान का सौदा ना करें, अपने जज्बात का सौदा ना करें, नबी के फरमान को पेश निगाह रखें। देखें मेरे मुस्तफ़ा ने क्या फरमाया। मेरे मुस्तफ़ा ने जिन कामों को करने का हुक्म दिया उन्हीं में आपके लिए बरकत रखी गई है। शराब से दूर हो जाओ, जुआ से दूर हो जाओ, लॉटरी से दूर हो जाओ। आज सच्ची पक्की तौबा कर लो। कसम खुदा की, अल्लाह तुम्हारे कामों में, तुम्हारे माल में इतनी बरकतें अता फरमाएगा कि तुम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। क्योंकि अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया कि जो शख्स अल्लाह से डरेगा, अल्लाह उसको वहां से रोजी देगा जहां से उसका गुमान भी नहीं पहुंचता होगा। तो अल्लाह का खौफ दिल में रखें। आज हम खुदा से नहीं डरते हैं। इसी बिना पर जुए के अड्डे पर एक मुसलमान नजर आता है, शराब के भट्टी पर मुसलमान नजर आता है, जिना के भट्टी पर मुसलमान नजर आता है। खौफ खुदा दिल में बसाओ मेरे अजीज। जब तक अल्लाह का खौफ दिल में नहीं होगा, आप इन कामों से दूर नहीं हो सकते। पैगाम रहमत आलम कॉन्फ्रेंस लेकर जाओ, बुराई से तौबा करो, गुनाह से तौबा करो। अगर आज आपने ये काम कर लिया तो आपका 4 लाख का जलसा कामयाब हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ये काम नहीं किया तो एक जलसा नहीं, लाख जलसा करोगे, कोई फायदा आपको नजर नहीं आएगा, कोई सवाब आपको नहीं मिलेगा जब तक आप खुद अमल नहीं करोगे। तो जलसे का पैगाम, जलसा एक दरसगाह हुआ करती है जहां पर लोगों को 4-5 घंटों में कुछ बात पढ़ाई सिखाई जाती है। तो पैगाम लेकर जाओ, सीख कर जाओ, खुद भी अमल करो और दूसरों को अमल करने की तरजीह भी दो। मेरा वक्त हो चुका है। इंशाअल्लाह जिंदगी सलामत रही तो फिर इस ताल्लुक से कुछ और गुफ्तगू होगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ कि मौला सबसे पहले मुझे इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। फिर आप तमाम हाज़रीन को, बिलखुसूस हमारे नौजवान भाइयों को परवरदिगार आलम शराब और जुआ की नहुसत से बचने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।